All right. Now I'll tell you something that SS610 क्यों पढ़ना है और क्यों अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? 600 सीरीज में there is only this was tested on Jan. Okay. Still we will cover it. सुनो ना, 610 में 600 सीरीज में only there is one standard that is covered in your syllabus. Rest everything is in CA file. ठीक है? पहली बात वो एक one standard है. दूसरा, it's a fairly easy standard. कैसे easy standard? That while you do the audit as an external auditor, if you get to know कि client का खुद का internal audit department है, so can we use internal audit department? But how will you use? There are two ways. किसी और का यूज करने के लिए, किसी और का मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का यूज करने के लिए, you have two options available with you. What are those two options? One, either you can use the work performed by that person, or you take assistance. Direct direct Assistant. assistance of that person. You will ask that person ki, dude, you come into my team and let's do the work together, right? Whenever you use that person's work or you ask that person to come into your team and work with you, you will always consider their competence, whether they are competent enough to work with you or not. Now, from here onwards, so basically entire standard is divided into two parts. One, when you decide कि बॉस काम वो करेगा, उसका जो भी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है ना, वो लेटर आई यूज. एक सेकेंड, कैन यू टेल मी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग करते क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? They check the efficiency of the internal controls. Yes. What Uh, else? they check that the FS are made to be free from material misstatements. नॉट नेसेसरली. इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोगों का कोई काम नहीं होता है, मतलब नॉट नेसेसरली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ अच्छा है वो देखेंगे, नहीं देखते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम They review the complex management compliance of with. So there is a topic in your books, guys. Everybody please open your books and see the functions of internal audit. Internal audit function की activities दिए होंगे आपको, और तीन ही है वो. One, they do the overall governance का काम, whether the organization is meeting their overall objective or not. Governance का काम करता है internal audit department. Yes. Second, risk management. What are the business risk, right? Business risk को manage करने का काम करता है. थर्ड केस में आता है कि वो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंसी देखता है, राइट? हमारे दिमाग में नॉर्मली यही रहता है दैट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंटरनल कंट्रोल्स की एफिशिएंसी चेक करता है, बट दैट इज देयर थर्ड रोल. मेनली फर्स्ट टू रोल्स होते हैं गवर्नेंस को देखना एंड रिस्क मैनेज करना, राइट? Yes, ma'am. ओके. वंस यू नो, देखो, पहली बात तो व्हाट इज द प्री कंडीशन ऑफ अप्लाइंग एस 610? कैन यू टेल मी कि आप 610 आपके लाइफ में एज ए स्टार्ट ऑडिटर कब अप्लाई करोगे? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थिंक ऑफ दैट आंसर. आई विल बी बैक इन अ सेकेंड. What is the precondition, guys, of using 610? जल्दी बताओ मुझे, इतना इजी आंसर है ये. Internal auditor होना भी चाहिए. एग्जैक्टली. द प्री कंडीशन ऑफ यूजिंग 610 कि भाई उस क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है क्या? अगर नहीं है तो व्हाई वुड यू यूज इंटरनल ऑडिट एस 610 ओवर हियर? दो तरीके हो सकते हैं इंटरनल ऑडिट होने के, या तो उनका इन हाउस इंटरनल ऑडिट टीम होगा, या तो फिर वो बाहर से पीडब्ल्यूसी ईवाई किसी का सर्विस ले रहे होंगे, किसी भी सीए फर्म का. आर बी क्लियर? Yes, ma'am. अगर है तो देन द क्वेश्चन कम्स, should I use their work? Should I take direct assistance? If I choose to use their work, then these things I will have to fulfill. If I choose to take direct assistance, तब ऐसी चीजें मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी. आर वी क्लियर? फंडामेंटल कंटेक्स्ट सेट हुआ आपके माइंड में? कैन आई टीच यू दिस स्टैंडर्ड नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All the people who have their cameras off, can you please confirm? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से याद Yes, करो. भले ये क्वेश्चन आ गया था, बट ये सोचो कि ठीक है यार, 15 मिनट 20 मिनट जाएंगे, याद हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? रिस्क नहीं लो, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह भी आते हैं. आई डोंट वांट यू टू टेक एनी रिस्क फ्रॉम द ऑडिट नाउ. कौन सा क्वेश्चन आया था इसमें से?
इसमें ना डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। उनका मूड है यूजिंग द वर्क, तो फिर वो यूजिंग द वर्क के तरफ डायरेक्ट करेंगे। इफ दे वांट टू यूज अबाउट टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, तो फिर डायरेक्ट असिस्टेंस में पूछेंगे। इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं है। इजी क्वेश्चन एक ही था कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता क्या है एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम क्या होता है। So internal audit function refers to the function of an entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of entities' governance, risk management, and internal control. So what are the functions of internal audit department? First, they will help in the governance की और entity अपने ethics values accomplish कर रही है, objectives accomplish कर रही है क्या. Activities related to risk management. The internal audit function may assist in identifying and evaluating the significant business exposure to business risk and improvement of risk management and internal control department. The internal audit function may also perform and assist the detection of fraud. Then they are also doing the activities related to internal control, such as the evaluation of internal control. The internal audit function may assign specific responsibility of reviewing control, evaluating their operations, and recommending the improvements there. Yes. Yes, ma'am. अभी इसके अंदर एक लेयर्ड क्वेश्चन है आपके बुक्स में कि जब भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो होगा, दे आर डूइंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, नॉट ऑल, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल वाले की बात कर रहे हैं. सो दे विल इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल. द इंटरनल कंट्रोल फंक्शन मे बी असाइंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग द कंट्रोल्स, इवेल्युएटिंग द ऑपरेशन एंड रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट देयर. सो एंड इन डूइंग सो द इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्रोवाइड assurance of the control. How? They can examine the financial and operating operation information. The internal audit function may be assigned to review the means used to identify, recognize, and measure and classify the reports of financial information and operating information. मतलब उनको ये काम दिया जा सकता है. And then to do that work, they can make a specific inquiry into individual items, including the detailed testing of transaction balances and procedures. दे में रिव्यू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सवाल क्या है यार कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कैसे इंटरनल कंट्रोल्स की एक्टिविटीज कर रहा है. दे में एग्जामिन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग ऑपरेशन, दे में रिव्यू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड दे में रिव्यू द लॉज एंड रेगुलेशन. आप ध्यान रखो ये क्वेश्चन किस चीज का है. सो अगर रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे करेगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट? Internal audit function may be assigned to review the economy, efficiency and effectiveness of the operating activities. Business कैसे, मेरा धंधा कैसे कंडक्ट कर रही हूं मैं, उसका इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस देखने के लिए मैंने इंटरनल ऑडिट को काम दे दिया है, इंक्लूडिंग एनी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी. फिर मैंने इंटरनल ऑडिट फंक्शन को बोला कि काम करो, तुम आ ही गए हो तो कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन भी देख लो. Internal audit function may be assigned to review the compliance with the laws and regulation, other external requirement, and with management policies, directives, and other internal requirements. Will you be able to handle this question, guys, in your exam? Yes, ma'am. Yes. ये बहुत बेसिक से आता है, बच्चे ऐसे उड़ा के चले जाते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन प्लीज ऐसी गलती करना मत. एक्टिविटीज, व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ऊपर से कनेक्टेड था. एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल. ठीक है. फिर सवाल ये आता है कि इन व्हाट वेज इन एक्सटर्नल ऑडिटर में मेक यूज ऑफ द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट. किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हो. See, while the objective of internal audit function and the external audit function differs, obviously ना, उसका काम है गवर्नेंस देखने का, इंटरनल कंट्रोल चेक करने का. हम रीजनेबल एश्योरेंस लेने जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो हमारे दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग ही होते हैं. The functions may perform audit procedures similar to those performed by the external auditor in an audit of financial statement. Still, internal audit वाला बंदा वही काम कर सकता है जो आप कर रहे हो when it comes to the financial statement. If so, the external auditor may make use of the internal audit function in one or more following ways. किस तरह से कर सकता है आप internal audit function का use, you can take their use to obtain information that is relevant to the external auditor for assessing the risk of material misstatement due to fraud or error. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है क्या, उसको फ्रॉड या एरर से वो ढूंढने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो. एंड अनलेस एंड अंटिल यू आर प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, you may decide to use the work being performed by the internal audit function
ड्यूरिंग द पीरियड इन पार्शियल सब्स्टिट्यूशन फॉर द ऑडिट एविडेंस। खुद ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली कलेक्ट करने की जगह आप उसके काम को यूज कर सकते हो। और यू कैन टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन अनलेस यू आर प्रोहिबिटेड। उसको बोलो कि भाई तू मेरे टीम में आ जा, आई विल डायरेक्ट यू, आई विल सुपरवाइज यू, आई विल रिव्यू योर वर्क। Will you remember this? कि there are three ways in which you can make use of internal audit functions for the purpose of audit. First, in obtaining information relating to assessment of risk of material misstatement due to fraud or error. Second, unless and until you are prohibited, you may use the work of internal audit function as a partial substitution for audit evidences to be collected by you. And third, you will take the direct assistance of internal audit function under your direction, supervision, and review. Are we clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, sir. SS 610 में आपका स्कोप क्या होता है? आपका दो ही स्कोप है, जो जो अभी तक ऊपर हम अग्री करके आए हैं उसके ऊपर ही पूरा स्टैंडर्ड रिवॉल्व होगा। आपका दो ही ऑब्जेक्टिव है। ये द SS 610 डील्स विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन व्हेन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस और यूजिंग द internal auditor to provide direct assistance under the direction, supervision and review of the external auditor. सवाल ये है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 610 अप्लाई करने के टाइम पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। तो सवाल का आंसर बहुत सिंपल है बॉस। आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट एक चीज याद रखना, ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होती है। सो अगर कल को जाके कुछ भसड़ मचेगी, कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं वो तो काम मैंने इंटरनल ऑडिट फंक्शन को दिया था चेक करने के लिए। नो 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 नो। So please remember, external auditor has sole responsibility for the opinion expressed, and the responsibility is not reduced by the external auditor's use of internal audit function or internal auditor to provide the direct assistance on that engagement. Yes, sir. क्यों ऐसा बोला है? बिकॉज हो सकता है वो लोग इंटरनल ऑडिट वाले लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे काम से मैच करता है, बट ना ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन और ना ही इंटरनल ऑडिटर्स, they are independent of the entity. They are not independent of the entity, right? इंटरनल ऑडिट फंक्शन कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं होता है। कंपनी का खुद का एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिट करके देता है बॉस, दे सकता है। आर वी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गाइस बहुत सर के ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं ना? घनश्याम, गीता, जूही, केशव, आर यू गाइस विथ मी? प्रियंका, आर यू हियर? Yes, Ma'am, ma'am. And where is मैम एक डाउट था। या टेल मी। मैम जैसे हम ऑडिट में पढ़ते हैं कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, तो हम अगर इंटरनल ऑडिटर का वर्क या इंटरनल ऑडिट टीम का वर्क एक एक्सटेंड तक यूज करते हैं तो वो हमारी इंडिपेंडेंस से सब्जेक्टिविटी नहीं हाँ होगी। देखो, आईसीआई को भी मालूम है कि बच्चे ऐसा सवाल करेंगे कि भाई इंडिपेंडेंस तो यहाँ पर थ्रेटन ही हो रहा है ना, इंडिपेंडेंस कैसे रहेगा अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय का काम यूज कर रहे हो। बट आईसीआई ने वो लीवे दिया है, क्योंकि अगर आपको, और ऐसा नहीं कि लीवे दे दिया है कि नहीं नहीं आप यूज ही करो, अगर आपको लगता है कि वो बंदा कॉम्पिटेंट है, वो खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़ा लिखा है, ही इज यूजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो उससे फायदा क्या होता है ना। देखो आप तो क्लाइंट पे 6 महीने के बाद जाते हो, 1 साल के बाद जाते हो ऑडिट करने के लिए, वो बंदा वहां रोज है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम मालूम है ना वहां के। So he can be of more use to you, and that is why ICI has given you this liberty that you can use when it comes to the internal control efficiency check करने से related, आप उसका काम इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीआई को मालूम है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बट स्टिल एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए वो लोग यूज आ सकते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एंड दैट इज व्हाई यू शुड यूज इट। हमको याद हो गया कि हमारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। देन प्लीज याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जब भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन है क्लाइंट के प्लेस पे, सो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? The external auditors expect to use the function of or to modify the nature, time and extent, or reduce the extent of audit procedure to be performed directly by external auditor, or to use the internal auditor to provide the direct assistance. आपके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहले आप डिटरमाइन करो क्या। First, to determine whether the work of internal audit function or the direct assistance from the internal audit function can be used. If yes, in what areas and to what extent. आपने डिसाइड किया है ना कि आपको उसका काम यूज करना है, सो व्हाट विल बी योर ऑब्जेक्टिव?
क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं हम, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 610 में? फर्स्ट यू विल डिटरमाइन whether you want to use the work of internal audit function or you want to take the direct assistance, and if yes, in what areas and to what extent. If you are deciding to use the work of internal audit function to determine whether the work is adequate for the audit purpose, जस्ट बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया कि आपको उसका काम यूज करना, आप उसका काम यूज मत करो, पहले डिटरमाइन करो कि वो एडिक्वेट काम है या नहीं है फॉर योर ऑडिट। आर वी क्लियर? Yes, sir. और अगर Yes, sir. आपने डिसाइड किया है दैट यू विल टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, यू विल डू व्हाट? यू विल डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क ऑफ दैट पर्सन। पॉइंट 1 2 3 कनेक्टेड है। पॉइंट 1 बोलता है पहले आप डिटरमाइन करो कि आपको उसका काम इस्तेमाल करना है या फिर उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेना। अगर उसका काम इस्तेमाल करना है तो प्लीज देख लो कि उसका काम आपके ऑडिट पर्पस के लिए एडिक्वेट है क्या। अगर आप उसको डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है तो आप उसको अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे, रिव्यू करोगे। आर वी क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ में? Yes, sir. Ma'am, टेल ना। what is the difference between this objectives and objectives of 610? Like, बहुत ज्यादा ही सिमिलर लग रहे थे। सिमिलर ही है वो। सॉरी, विच 6? यू कंपेयर्ड व्हाट? ये वाला टॉपिक क्या? हाँ, आई थिंक लाइक डायरेक्ट असिस्टेंस रिव्यू नहीं, दिस लाइक 1 2 3 अरे पॉइंट्स नहीं, लाइक। देख स्कोप में भी सेम चीज लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव में भी सेम चीज लिखी हुई है, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। अभी तक हमने दो ही चीज पढ़ी है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पढ़ा है, जहां पर हाँ, एक एक आप पता कंफ्यूज क्यों हो गए? स्टार्टिंग में कंटेक्स्ट दिया हुआ था, वेज इन विच यू शुड बी यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, राइट? दिस क्वेश्चन Yes. यस मैम, दिस एंड सेम द ही आंसर, पहले। हर जगह सेम आंसर है, इतना ओके, ठीक है, सेम ही आंसर है वो। ओके। मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने डिसीजन तो बना लिया है बॉस, क्या? That you want to use the work of internal audit function for the purpose of audit. So you will have to evaluate the internal audit function. Like आपने मन नहीं बनाया है, you are thinking कि नहीं यार डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना है, we will use the work of internal audit function. ठीक है? So when you are determining, the external auditor determine whether the work of internal audit function can be used for the purpose of audit by evaluating the following. आप तीन चीजें evaluate करोगे. Can you look into your books and tell me what are the three things when you will evaluate when you have to decide कि वो सामने वाले बंदे का काम यूज करना है? Organization status and objectivity. Objectivity, the level The of level of competence, competence. Confident. The level of Whether the competence internal audit function applies a systematic systematic and and disciplined approach, including quality Did you control. all get this answer? Quality control. yes, sir. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपको ये याद रखना है, whenever you decide कि मुझे उसका काम यूज करना है, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट असिस्टेंस में ये आंसर चेंज हो जाता है। whenever you are using the work, फर्स्ट आप डिटरमाइन करो उस बंदे का ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होता है? उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस से एंड रिलेवेंट पॉलिसीज के बेसिस पे। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसीज उसके ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करती हैं। दूसरा चेक करो उस बंदे का लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है ऑफ द इंटायर इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एंड थर्ड यू विल सी द सिस्टमैटिक, वेदर दे आर फॉलोइंग द सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच टू डू द वर्क और नॉट। एंड अगर आपको लगता है दैट उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस जो ऑब्जेक्टिविटी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसीज है वो बायस्ड है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या फिर इट इज ओवरराइडिंग देयर प्रोफेशनल जजमेंट, या तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार ये जो बंदा है इनफ लेवल का कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, या फिर ही डजंट फॉलो द सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, विल यू यूज देयर वर्क? No. No. No, So ma'am. the external auditor shall not use the work of internal audit function if the internal audit function organizational status do not support the objectivity or internal audit function lack the competence and they do not follow the systematic and disciplined approach. आपके बुक्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। Yes, sir. सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे देखोगे आप? फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी एंड इट्स इवैल्यूएशन। देयर आर 4 पॉइंट्स फॉर द फैक्टर्स ऑब्जेक्टिविटी देखने का इंटरनल ऑडिट फंक्शन के।
Did you all get this question? Yes. Yes, ma'am. Guys, only few people are answering. I want the answer from everyone. You are investing one last time आप 610 पढ़ रहे हो, आप ऐसे सोच के ही पढ़ो प्लीज. इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, और भी रेलेवेंट चैप्टर्स है ना हमारे पास में. ऑब्जेक्टिविटी कैसे देखें सामने वाले बंदे का? सो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस देखो. Whether organizational status of IF supports the ability of internal audit function to be free from bias, conflict of interest, and undue influences of other people who can override the professional judgment of internal audit function. Verify करो कि क्या TCWG oversees the employment decision of internal audit function. Verify whether there are any constraint placed upon the internal audit function by the management. याद है मैनेजमेंट हमारे ऊपर भी लिमिटेशन लगाता है, पता चला मैनेजमेंट इसके ऊपर भी लिमिटेशन लगा रहा है. और whether IAF is free from any conflicting responsibility. क्या conflicting responsibility? IAF इंटरनल ऑडिट फंक्शन को बोला है कि तुम भी मैनेजमेंट का भी काम देखो, इंटरनल ऑडिटर भी बन जाओ. अरे ये क्या नॉनसेंस है? So verify whether they are free from any conflicting responsibilities. क्या 4 पॉइंट्स आपको देखने पड़ते हैं when you're determining the what are the factors for determining the objectivity of internal audit function? First, verify whether their organizational structure and internal audit function, organizational structure of internal audit function supports their ability to continue the work free from any bias, free from any conflict of interest, and free from any undue influence. Yes. Yes. Whether TCWG oversees the Oversee employment discipline. whether any constraint placed upon them by the management TCWG, and whether IF is free from any conflicting responsibility. Are we clear, guys? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. उस बंदे का कॉम्पिटेंस कैसे देखेंगे? कॉम्पिटेंस, पहली बात तो ये देखो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से इनका टीम अच्छा खासा है या नहीं है. पता चला पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2 इंटरनल ऑडिटर है. इज इट कमेंसरेट विद द साइज ऑफ द एंटिटी एंड द नेचर ऑफ देयर बिजनेस? No. No. Right? Second, whether there are policies established for hiring, training and assigning internal auditor. भाई कोई इंटरनल ऑडिट टीम में आ रहा है, उसको काम तो आना चाहिए ना इंटरनल ऑडिट का. थर्ड, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी है क्या ऑडिट करने के लिए? इंटरनल ऑडिटर कैसे बनेंगे? एटलीस्ट इतना तो भी बेसिक आना चाहिए. एंड डू दे हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ AFRF? गाइस सुनो, हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से रिलेटेड, तो कम से कम उनको बेसिक तो भी समझना चाहिए ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं. व्हाट डू से? Yes, ma'am. ये 4 Yes, बहुत ma'am. डिस्टिंक्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है. फिर हमने क्या बोला था लास्ट? उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन. यस. सो इसका खुद का क्वेश्चन आ सकता है अगर आया. द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच टू प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड सुपरवाइजिंग एंड रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटिंग इट्स एक्टिविटीज डिस्टिंग्विश द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन फ्रॉम अदर मॉनिटरिंग कंट्रोल एक्टिविटीज दैट मे बी परफॉर्म विद इन द एंटिटी. The way they are planning the work, performing the work, internal audit function, the way they are supervising the work, reviewing the work, documenting the work, वो totally अलग होना चाहिए उनकी other activities से. And what factors may affect the external auditors determination कि क्या उनको उनका internal audit function का काम disciplined and systematic लगता है? पहले देखो क्या देखना पड़ेगा आपको कि क्या इनके पास whether the existence and adequacy and use of documented यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स है क्या. जैसे याद है 230 में एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आपको पूरा प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करना पड़ता था कि आपने ऑडिट कैसे किया है. तो भाई ये बंदा डॉक्यूमेंट कर रहा है क्या, क्या प्रोसीजर लगा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट, क्या व्हाट ही हैज डन टू डू द इंटरनल ऑडिट. यस. उनके एरियाज ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या थे, वर्क प्रोग्राम्स क्या थे, अदर डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, द नेचर ऑफ एक्सटेंट टू विच इट इज कमेंसरेट विद द साइज एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी. द गोल इज आपको किसी का काम एडिक्वेट कब लगेगा, सिस्टमैटिक कब लगेगा? व्हेन द प्रोसीजर्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड, द प्रोसीजर आर एग्जिस्टिंग, द प्रोसीजर्स आर एडिक्वेट. Adequate to what? Adequate to the size and the circumstances of the entity. And not just that, internal audit function proper control policies and procedure भी इस्तेमाल करना चाहिए. Quality control आप करते हो क्या external audit में? Do you follow the control policies, quality Yes. control policies as per what? SA 220. SQC1 and SA 220. Yes. 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 Beautiful. So किन हालातों में आप उसका काम यूज नहीं करोगे?
जब आपको लगता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस जो है ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, या तो फिर उसका सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है। यस सर। बट इससे आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किन हालातों में उसका काम आपको लेस यूज करना चाहिए। Circumstances in which the external auditor shall plan to use less work। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि काम मत यूज करो, हम बोल रहे हैं कब वो कम यूज करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए। इन एनी एरिया जहां पर भी ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होता है, वो काम आपको खुद डायरेक्टली करना चाहिए। यू विल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जैसे कि प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर, ये आपका खुद का काम है, आप उसका यूज मत करना। एविडेंसेस जो आपने गैदर किए हैं उसको इवेल्युएट करने का काम आपका खुद का होता है, उसका काम मत यूज करो इंटरनल ऑडिटर का। एरियाज वेर एवर देर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कृपया करके वो काम आप खुद करें। जहां पर भी आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिविटी उसका रिलेवेंट पॉलिसीज वगैरह वो फॉलो नहीं कर रहा है, मत लेस लेस यूज। लोअर कॉम्पिटेंस लेस यूज। देखो, 2 पॉइंट तो हमने ऊपर से ही बोरो कर लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस वाला, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस वाला। सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखना है, एक जहां पर जजमेंट ज्यादा होता है, जहां पर रिस्क ज्यादा होता है, वहां पर हम उसका काम का यूज करेंगे। क्या बोलती है पब्लिक? यस सर। डिसाइड हो गया आपने यूज करना है उसका काम और कहां पर यूज करना है। द क्वेश्चन इज कैसे यूज करना है उसका काम। हाउ विल यू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर? If the external auditor plans to use the work of internal audit function, the external auditor shall do certain things. Do you have this question? पहली बात तो मुझे आप ये कंफर्म करो, ऐसा लग रहा है कि मैं ही पढ़ रही हूँ खाली। Guys, Yes. Yes, ma'am. everyone, please, at least how many people are there? At least 15, 16 people are there. I need at least 15 people to say me that they have this topic, कि उसका काम यूज कैसे करना है। Yes, ma'am. Yes, sir. अभी तक तो हम ये डिसाइड कर रहे थे ना कि भाई यूज करे नहीं करे, उसका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस फलाना ढिमकाना, भाई उसका काम यूज कैसे करना। देखो, वेन एवर यू डिसाइड टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, सबसे पहले उससे डिस्कस करो। डिस्कस द प्लान यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। क्योंकि यार किसी का काम यूज करना है तो आप उसको बताना पड़ेगा ना कि क्या कैसे यूज करने वाले। तो डिस्कस द प्लान यूज ऑफ देयर वर्क। आर वी क्लियर? Second, you will read the reports of the internal audit function relating to the work of function that the external auditor planned to use to obtain the understanding of the nature and extent of procedure it performed and related findings. आप उस जो भी इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहे हो, उसने कुछ ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनाई होगी ना इंटरनल ऑडिट करने के बाद में, उसको रीड करो, फाइंड आउट करो उसने क्या प्रोसीजर्स लगाए और उसको क्या क्या गड़बड़ मिले। यस? Yes. Then please perform sufficient audit procedure to find out that the work as a whole, perform sufficient audit procedures on the work of internal audit function as a whole that the external auditor plans to use to determine its adequacy for the purpose of audit. Just because सामने वाले ने काम किया है as it is, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आपने पहले उसका काम डिस्कस, कितना कितना काम यूज करने वाले वो डिस्कस करोगे, उसके रिपोर्ट्स रीड करोगे, उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए, क्या फाइंडिंग्स निकाले वो देखो, एंड उसके ऊपर भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स सफिशिएंट प्रोसीजर्स लगाओ, ताकि आपके आपके लिए उसका जो काम है वो एडिक्वेट है या नहीं है वो आप डिटरमाइन कर सको। मेरा सवाल ये है कि जब आप उससे डिस्कस करने के लिए गए थे तो क्या क्या चीजें डिस्कस करोगे आप? टाइमिंग ऑफ सच वर्क, भाई तू कब क्या काम करने वाला है, दैट आई कैन यूज। Second, what is the work that you are going to perform and what will be the extent of your audit coverage? सिर्फ इतना बताने से चलेगा क्या इंटरनल ऑडिटर को? नहीं ना, उसको ये भी तो बताओ कि मटेरियलिटी क्या थी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ताकि वो ध्यान रखे। यस? सैंपल Yes. सिलेक्शन एंड सैंपल साइज के प्रपोज्ड मेथड्स क्या होंगे एज पर 530, वो भी बताओ। कितना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको ऐसे पर ऐसे 230, वो भी उससे डिस्कस करो। एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे वो डिस्कस करो। What are the things that you will discuss? At least 7 things you have to discuss with the internal auditor before you actually use the work of internal auditor. यस सर। क्योंकि आपने सामने वाले को बोला भाई तू काम कर, आई विल यूज दैट वर्क। सो एटलीस्ट टाइमिंग क्या होगा, नेचर ऑफ वर्क, Nature.
extent of audit coverage, materiality, Materiality, proposed methods documentation, of what documentation, review and reporting. method of item selection and sample sizes, then documentation, then review and reporting procedures के हमने. Yes. Yes, ma'am. Coordination between the external audit and internal audit function कब effective होता है? जब discussion कब हो रहा है? Appropriate interval. Appropriate And throughout the period आप दोनों बातें कर रहे हो एक दूसरे से. Yes. The external auditors informs the internal function of the significant matters that may affect the function. सवाल क्या पढ़ रहे हो? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा है? कि हमने बोला ये जो आप डिस्कशन करना है ना, ये 7 पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेशन करना है, ये डिस्कशन कब इफेक्टिव होगा? जब ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग में बात करो और एंड में बात करो ऑडिट के. थ्रू आउट द फंक्शन आप बात करो ना, क्या कैसे काम यूज करना है. यस. दूसरा, एक्सटर्नल ऑडिटर जो है, इंटरनल ऑडिटर को कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होता है वो इन्फॉर्म करेगा. एंड इंटरनल ऑडिटर भी सेम चीज रेसिप्रोकेट करेगा. एक्सटर्नल ऑडिटर इज ऑल्सो एडवाइज्ड एंड हैज एक्सेस टू द रेलिवेंट रिपोर्ट टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. क्या बोलते हो गाइस? कब इफेक्टिव होगा? वो बोथ द साइड्स एफर्ट्स दिखने चाहिए ना. ये गाइस मैंने फर्स्ट लेग ऑफ द SS610 खत्म कर दिया. अब मुझे दूसरे लेग पे जाना है, दैट इज यूजिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस. बट बिफोर दैट, एक्सटर्नल पॉइंट 2 पूछ रहे हो क्या जहरा? एनी सिग्निफिकेंट मैटर दैट में अफेक्ट द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट. जैसे आपको लगता है कि आपको इंटरनल इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं और आपको ऑलरेडी मालूम है कि इन्वेंट्री पे कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तुरंत इंटरनल ऑडिटर को फोन करो कि भाई सुन, जब तो इंटरनल ऑडिट वाला ये वाला काम करने वाला है ना फॉर योर इंटरनल कंट्रोल पर्पसेस, तो जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द इन्वेंट्री. बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है. Now, please take a moment and read everything carefully so that I can take you to the direct assistance. क्योंकि अब ये टॉपिक खत्म होने वाला है. 5 मिनट मैक्सिमम it will be finished, but you should be able to remember ऊपर आपने क्या पढ़ा है. And tell me what was the question asked in the last exam जो हम अभी skip कर सकते हैं. Exactly क्या क्वेश्चन आया Coordination था? वाला था वो हो गया. मैम, हाँ. क्वेश्चन ये था कि what should we have undertaken before relying on the work of internal auditor. And एक केस स्टडी दी थी, उसमें ऐसा था कि इंटरनल ऑडिटर से कुछ गलती हो गई तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर उसके सर कर रहा था. तो वो पूछ रहे थे कि एक्सटर्नल ऑडिटर का ये अप्रोच सही है क्या? So ऐसा it is क्वेश्चन था. पहली बात याद है आपने स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था दैट it is the external auditor's sole responsibility when he is using the he will use Yes. the work of internal auditor or when he takes the direct assistance. Yes. जूही आप क्या बोल रहे थे? इसका ही बता रही थी. यही बता रहे थे आप उसमें, राइट? अब वो कोऑर्डिनेशन वाला जो पढ़ा है वो मई 24 में आया था. अच्छा, कोऑर्डिनेशन जो पढ़ा था आपने May 24 में आया था क्या? ओके. चलो एक बार फिर भी गो थ्रू कर लो अपन बाकी बच्चे, क्योंकि देखो हर एक स्टैंडर्ड में ना आराम से 7-8 गुड क्वेश्चंस होते हैं. सो अपन ये नहीं बोल सकते कि लास्ट टाइम आया था तो फिर से नहीं आएगा. ऐसा मत करने का. उल्टा 7-8 में से वो एक पूछ लिया तो दूसरा पूछ सकता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ के जाओ. एकदम कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली आप ऑडिट के पेपर में जाना चाहिए. ठीक है. Now let's understand. This time you don't want to use the work of internal auditor, Shoaib. You have decided. Shoaib, are you focusing here? Shoaib, are you here with us? Okay. You don't want to use the work of internal auditor. You want to take the direct assistance of the internal auditor. So he will become your team member now, as if your team member. But the thing is, he is also a team member of the client. तो अगर उसने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं की तो दिक्कत हो जाएगा ना यहाँ पर. इंडिपेंडेंस तो वैसे भी गया था, वो तो ठीक था. कॉन्फिडेंशियलिटी भी जाएगी ना. हमारे ऑडिट में क्या हम क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं, वो चुगली कर देगा जाके वहां पर. यस अनुराग, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यार. मैं तो होती तो कर ही देती थी. फिर बेटर है ऐसे लोगों से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लो. अग्रीमेंट, देयर हैज टू बी 2 अग्रीमेंट. पहला, इस बंदे से एग्रीमेंट करके लो जो जिस बंदे को आप अपनी टीम में लेना चाह रहे हो
कि भाई तू किसी को कॉन्फिडेंशियलिटी रिवील नहीं करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ माई एक्सटर्नल ऑडिट तुझे पता चलता है, यू विल नॉट रिवील इट टू एनीवन। यस। सेकंड, उसी एग्रीमेंट में लिखवा के लो कि अगर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कभी भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी हर्ट होता है और तुमको लग रहा है कि तुम बायस हो रहे हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तुम तुरंत दौड़ के आओगे और मुझे इन्फॉर्म करोगे। आर वी क्लियर? फर्स्ट एग्रीमेंट में कौन से दो पॉइंटर्स आएंगे? सेकंड, एक एग्रीमेंट बना के लेना किसके साथ में? समवेयर इन द मैनेजमेंट कोई एक ऐसा बंदा होगा हु शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस इंटरनल ऑडिट वाले बंदे की, कि ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट पीपल विल नॉट इंटरफेयर। मैनेजमेंट, मुझे जो काम करवाना है वो इंटरनल ऑडिट बंदे से मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगी, वो बंदा मुझे रिपोर्ट करेगा। मैनेजमेंट का कोई बंदा बीच में अपना नोज पोक कर नहीं करने वाला है। आर बी क्लियर? कौन से दो एग्रीमेंट चाहिए साइन करवा के आपसे? यस सर। क्लियर? क्योंकि अच्छा, जब भी आप किसी बंदे को अपनी टीम में ले रहे हो तो अब तो वो आपके आर्टिकल जैसे हो गया। उसको डायरेक्शन देना, सुपरविजन देना, उसका काम रिव्यू करना आप खुद कर लोगे। यस सर। डन। एक और पॉइंट है मेरे पास, कैसी चीजों में आप उसका काम, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। अभी जस्ट बिकॉज आपको वो बहुत सुंदर लग रहा है और टैलेंट वाइज आपको लग रहा है ओ माय गॉड लाइक सच अ गुड गाय, ये वो एमबीए हार्वर्ड से पढ़ के आया। लिसन, डोंट गिव ऑल योर ऑडिट वर्क टू दैट पर्सन फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। हाँ, देयर इज ओनली लिमिटेड थिंग्स दैट यू कैन गिव सच पर्सन टू डू, यू नो, इन विच ही कैन प्रोवाइड यू डायरेक्ट असिस्टेंस। डोंट गिव एंटायर ऑडिट, डेलीगेट ही करके आ गए कि भाई तू करके आ, मैं घर पे बैठा हूं। नो 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 नो। आर वी क्लियर? नाउ लेट मी यस शो सर। यू ऑल ऑफ दिस। देखो, मैं ऐसी चीजें ऐसे क्यों बोलती हूँ, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा कुछ याद आएगा कि हाँ यार ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम था, बट ऐसे लिख करके मत आ जाना डायरेक्टली, सिस्टमैटिकली लिखेंगे ना। यस। ठीक है, चलो, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक यार। कि अब अभी देखो, आपने डिसाइड किया है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम का क्या करना है, अपने को डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है। टॉपिक किधर गया? हाँ, नाउ determining whether in which areas and to what extent internal auditor can be used to provide direct assistance. So first of all, ध्यान रखो, it should not be prohibited by law from obtaining direct assistance. Yes? Yes, ma'am. You should, Yes, ma'am. there shall not be any prohibition from the law. And if using the internal auditors to provide direct assistance is not prohibited by the law or regulation, the external auditor plans to use the internal audit to provide the direct assistance on the audit. The external auditor shall evaluate the existence of significance of threat to objectivity and level of competence of internal auditor who will be providing the assistance. मैंने ये remember, मैंने आपको दो चीजें बोली थी जो आपको एग्रीमेंट में लेना था इस इंटरनल ऑडिट वाले बंदे से। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, दूसरा उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट नहीं है। सो जब Yes, भी आप yes, डिसाइड कर रहे हो कि उस बंदे का डायरेक्ट असिस्टेंस लेना, सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट तो नहीं है वो देख लो, और उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देख लो। यस? yes, sir. एंड इन ऑर्डर फॉर यू टू डिटरमाइन कि कोई थ्रेट है क्या उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, तो उसको पूछो कि उसका क्लाइंट के साथ में किस किस चीज को लेकर के क्या क्या रिलेशनशिप है। पता चला क्लाइंट ने ही उसको लोन दिया हुआ है 20 लाख रुपीस का या 5 लाख रुपीस का, वॉट एवर, उसको पर्सनल नीड के लिए चाहिए था, क्लाइंट ने उसको लोन दिया हुआ है। तो अभी यार वो बंदा इतना ज्यादा फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हो गया इस कंपनी में, वो कहाँ आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिविटी, राइट? Yes, तो वेन एवर यू फील कि उसका ऑब्जेक्टिविटी में सिग्निफिकेंट थ्रेट है या बंदे के पास कॉम्पिटेंस नहीं है, विल डू नॉट टेक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन. Do you have this in your books that external auditor shall not use internal auditor to take direct assistance if there is significant threat to the objectivity and the person lacks the competence? Everyone? Yes, ma'am. Riddhi, are you here? I think it's clear, guys? Beautiful. अब एक सवाल आपको, do you remember there was a question in what areas you should use less work of internal auditor? yes, ma'am. There was a question over there. यहाँ पर भी सेम ऐसा क्वेश्चन है कि इन व्हाट एरियाज यू शुड नॉट यूज द इंटरनल ऑडिट. यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन व्हाट एरियाज यू शुड नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस. द एरियाज वेयर देयर इज significant judgment involved in the audit.
The areas in which there is a higher risk of material misstatement. एंड थर्ड, देखो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट चेंज हो जाएगा. थर्ड पॉइंट बोलता है कि द एरिया जहां खुद इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व था उस कंपनी में, उस एरिया को थोड़ी ऑडिट करने के लिए इसको दे दोगे आप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए कौन से एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस लोगे? जहां वो खुद इन्वॉल्व था, वही कर रहा था वो काम. नो 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 नो, फिर इंडिपेंडेंट होगा ना वो. सो रिलेट टू, you shall not use the direct assistance of internal auditor in the areas which relate to the work in which internal auditor have been involved and which has already been or will be reported to the management or TCWG by the internal audit function. And last point का सिंपल सा मतलब है, रिमेंबर इन द बिगिनिंग आपको डिसाइड करना था कि भाई मैं डायरेक्ट असिस्टेंस लूं या मैं उसका काम यूज करूं. यस, ये डिसीजन मेकिंग का काम जो है आप इस बंदे से नहीं करवा सकते. Relate to the decision the external auditor make use in accordance with SA regarding the internal audit function and use of its works or direct assistance. Are we clear? कौन सी चार चीजों में आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो? Yes, ma'am. Yes. कौन से दो एग्रीमेंट ऑब्टेन करने हैं? पहला, obtain a written agreement from the authorized representative of the entity and that the internal auditors will be allowed to follow the external auditor's instruction and the entity will not intervene in the work performed by the internal auditor for the external auditor. ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से साइन करवा के लो कि भाई इंटरनल ऑडिटर आपके ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा एंड एंटिटी इंटरवीन नहीं करेगी. देन obtain the agreement with the internal auditor कि वो आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेगा एंड कुछ भी थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आया तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा. एक छोटू सा क्वेश्चन आता है कभी आगे एग्जाम में, तो ध्यान रखो. इंटरनल कंट्रोल फंक्शन एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? when I have taught you SA 315 during those days, क्या मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन लर्न करवाया था? Yes, ma'am. I did. Can you tell me the definition of internal control, guys? They are implemented, designed, and evaluated by the management, TCWG, or any other personnel to provide reasonable assurance that the Entity's fi- objective has Reasonable assurance that entities are achieving its objective. What objective? कौन से चार objective थे? Financial gen- reporting objective. पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? Reliable. reliable, सेकंड, एंटिटी का ऑपरेशन कैसा चल रहा है? effective, Effective. थर्ड, एंटिटी के असेट्स क्या है? safeguarded, safeguarded, लॉज एंड रेगुलेशन का क्या हो रहा है? compliant. compliance. Beautiful. So this is the only definition of internal financial control. Internal financial control का यही मतलब होता है. Internal financial controls are the policies and procedure that are put in place by the companies for ensuring the reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of the operation, compliance with the laws and regulations, safeguarding of asset. इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, prevention and detection of fraud. वो तो आप याद ही रखोगे. IFC बहुत ही वाइडर टर्म होता है. ठीक है. सवाल ये है, ICFR क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ रिक्वायरमेंट कमिंग फ्रॉम द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में बोला है कि ICFR करवाना पड़ता है एंटिटीज को. सो इसमें क्या होता है? ICFR इज रिक्वायर्ड व्हेन ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यहाँ पर सब कवर नहीं है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स है या नहीं है, ICFR में उसका रिपोर्टिंग होता है. And such opinion is in addition to or distinct from the opinion expressed by the external auditor. So external auditor जो audit का opinion दे रहा है उससे different होता है ICFR का. And ICFR एक narrower term है क्योंकि इसे financial reporting में focus करता है, ये other elements पे focus नहीं करता. Are we clear? Yes, sir. Yes, Just ma'am. in 1 hour we have done the detailed revision of SA 610. Now because you all are my students, you will not forget a single point, right?
टेक योर टाइम, एब्सॉर्ब ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस जो आपने पढ़ा है, सो दैट वी कैन गो टू द SA 530. How is the confidence now, guys, in 610? Good. Good? Better than before? ऐसा तो नहीं कि मैडम पहले से जितना आता था वो सब भी भुलवा दिया है आपने इतना फास्ट फास्ट बोल के? Is anyone feeling like this? चलो, मैम हाँ बोलो ना. मैम एक एमसीक्यू था मैम, तो इसी में से था ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर शेल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस में, ये जो थर्ड पॉइंट था इसमें जो रिलेटेड टू वर्क विद द इंटरनल ऑडिटर हाँ, have been have been involved and which has already been or which will be reported to management मैनेजमेंट and एंड TC। TCWG बाय द इंटरनल ऑडिट तो मैम फंक्शन. हाँ. इसमें एक एमसीक्यू मैंने कहीं देखा था, इसमें ये पूछ रहा था कि ये कौन सा थ्रेट है, तो मैम ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा नहीं है? हाँ, दिस इज सेल्फ रिव्यू थ्रेड कि उसी ने वो काम किया, अभी उसको वापस ही वो चेक करेगा, वो करेक्ट है. यस मैम, यही बट एक एमसीक्यू था। चलो, शैल आई क्लोज 610? आप लोग फिर 530 पे जंप करेंगे. आप पढ़ लो एक बार 610 का डायरेक्ट असिस्टेंस वाला पार्ट.